जो है कि भाई कभी कभार एजेंट्स की तरह भी होते हैं, ट्रस्टीज भी होते हैं, राइट? So finally I'm live now, so we can start the class, right? So a very good afternoon to all of you. So हमने 3 units complete कर लिए हैं. Unit 1, that was introduction, I guess. Company, company, NCLAT, types of companies, formation and incorporation of companies. So unit 1 is complete. Unit 2 was all about documents, जिसके अंदर हमने MOA, AOA, prospectus, shares, share certificate, employee stock option schemes, buyback, DMAT, what is membership in a company, right? So ये हमने पढ़ा था. यूनिट 3 हम आज शुरू करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स, जिसके अंदर हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 15, दैट इज कंपनी मैनेजमेंट से. Apart from that, we have already completed Unit 5 in the last class, which was Depositories Act 1996. अगर उसमें कोई डाउट है तो आज के सेशन में आप पूछ लेना. Exactly at 1:30, I'll take the questions from Depositories Act. ठीक है? So now I'm starting the class. अब हम शुरू कर रहे हैं कंपनी मैनेजमेंट से. आज हमारा एजेंडा ये समझना कि what is the legal position of directors in a company? Can directors be the employees of a company, or they are an agent? Or is there a difference between an agent and a director? क्योंकि हम usually क्या बोलते हैं कि director is like an agent, जो हमारे general public और company के बीच का source है. तो it acts as an agent, right? तो वो हम देखेंगे. फिर हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी में, कितने मेंबर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं, और क्या कोटास या क्या प्रोविजंस हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये जानने के लिए कि कितने पार्ट्स होने चाहिए हर एक के. ठीक है? सो वील स्टार्ट विद, एज यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन्स ऑल्सो, we'll start with company management, right? So what is a company? भाई कंपनी इन द आईज ऑफ द लॉ इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो भाई उसको रन करने के लिए तो अब कौन यूज करेंगे? ह्यूमन एजेंट्स यूज करेंगे हम. वो एजेंट्स कौन होते हैं? वो एजेंट्स होते हैं डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स को साथ मिलके हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दे आर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी. अब बोर्ड क्या होता है? बोर्ड भाई टॉप मैनेजमेंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर डिसीजंस लेते हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता काम. दैट इज द बोर्ड. So the board of directors are therefore the primary agents for the company to transact its operations. ठीक है? अब आ गया what is the legal position of directors, कि भाई Companies Act does not define that the legal position of directors जो है कि भाई कभी कभार agents की तरह भी होते हैं, trustees भी होते हैं, right? Let me share the screen again. I got this right. No, not the notes. I think it is in review. Right. So here, so it can be agents, it can be trustees or managing directors. तो हम ये पढ़ेंगे. So the directors are sometimes defined as agents, sometimes they are known as trustees, and sometimes they are known as managing directors. But in actuality, each of these expressions is only indicative and they are not exhaustive of the powers and responsibilities. मतलब जो powers और responsibilities हैं हम directors की, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं. So it cannot be confined to just one word. तो इसके अंदर पहला पॉइंट दे रखा है कि डायरेक्टर्स एक्ट एज एजेंट्स. तो क्या लिखा हुआ है कि भाई कंपनी अपने आप एक्ट नहीं करती, वो डायरेक्टर्स के थ्रू एक्ट करती है. देयरफॉर डायरेक्टर्स इन दिस सेंस कैन बी नोन एज द एजेंट्स. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, directors as managing partners. A company has been sometimes linked to a large partnership. भाई टेक्निकली देखा जाए तो लोग मिलके काम कर रहे हैं for the profit of the company. So a company can also be sometimes called as a large partnership where the directors are charged with the responsibility of managing its affairs. So the other shareholders are virtually
dormant partners. So even if I have some shares and I am a shareholder of a company, but I am a dormant partner, I do not participate. Even in voting also, I do not participate, though I have the voting rights. So what happens is कि जो directors होते हैं वही main players होते हैं. So by virtue of various provisions in the memorandum as well as the articles of association, the directors enjoy a vast powers and they can act as the supreme policy and decision making body. ठीक है? However, they are not completely like partners. हम उन्हें managing partners की तरह वो काम करते हैं, but वो managing partners नहीं हो सकते because we cannot bind the other partners, we cannot bind the other directors as partners in the firm can do. तो partnership के अंदर जो partners होते हैं वो bind होते हैं, वो जो गलतियां कर रहे हैं वो liable होते हैं, unlimited liability होती है. But in case of directors, नहीं, they are working on behalf of the company. Again, they are subject to retirement, whereas partners rarely retire. Partners कभी usually retire नहीं होते, जबकि directors तो retire होते रहते हैं, उनका tenure खत्म हो जाता है तो. So they are not completely like the managing directors, but they act as managing directors sometimes. Directors can also be regarded as trustees of the company's assets. क्यों? क्योंकि उनका काम है कि कंपनी के assets को अच्छी तरीके से यूज करना, उनको बनाए रखना, उन्हें इंक्रीज करना और अपनी लाइबिलिटीज को टाइम टू टाइम पे करना, मतलब कंपनी के अफेयर्स को अच्छे से चलाना. So directors can be regarded as the trustees of the company's assets and the powers vested in them because they administer those assets and exercise those powers in interest of the company. उनका कोई पर्सनल एडवांटेज नहीं होता, वो कंपनी का फायदा करने के लिए करते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली उन्हें भी उसी से फायदा होगा. सो इन केस ऑफ यॉर्क एंड नॉर्थ मिडलैंड रेलवे कंपनी, अब इसके अंदर उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि डायरेक्टर्स आर पर्सन्स selected to manage the affairs of the company. ठीक है भाई, it is an office of trust. मतलब ये कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो डायरेक्टर्स हैं वो ट्रस्टी की तरह एक्ट करते हैं इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. किस फॉर्म में? द कंपनीज मनी, प्रॉपर्टी जो उनके हाथ में होता है वो उनके कंट्रोल में होता है, प्लस उनके पास पावर्स होती हैं टू रन इट और टू यूज द एसेट्स. सो दैट इज व्हाई दे कैन बी नोन एज ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी, राइट? सो अब हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं, वो अपनी स्किल्स, अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ कंपनी के फायदे के लिए काम कर रहे हैं. तो टेक्निकली देखा जाए तो एक डायरेक्टर मतलब in such case it was held that the directors owe no fiduciary duty towards the strangers to the company other than shareholders. तो जो directors हैं वो जो भी decision लेते हैं वो किसी stranger के लिए नहीं लेते, वो company के लिए लेते हैं, वो उसके shareholders के benefit के लिए लेते हैं, वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लेता है. इस वजह से इस वाले केस के अंदर इट वाज हेल्ड कि डायरेक्टर्स की कोई फिड्यूशियरी ड्यूटी नहीं है स्ट्रेंजर्स को लेके. उनकी ड्यूटी किसके लिए है? शेयर होल्डर्स के लिए, ओनर्स के लिए कंपनी के, और कंपनी इटसेल्फ. So it is to be noted that the directors are the trustees of the company and not of individual shareholders. किसी एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए नहीं है, वो पूरी कंपनी के ट्रस्टी हैं, वो पूरे एसोसिएशन के ट्रस्टी हैं, राइट? अब तुम ये देखोगे कि इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन गिवन है वो दोनों चीजें बताता है कि भाई वो ट्रस्टी की तरह काम करते भी हैं लेकिन वो एग्जैक्टली ट्रस्टी नहीं है. सो द लास्ट पॉइंट यही कहता है कि डायरेक्टर्स को हम एग्जैक्टली ट्रस्टी नहीं बोल सकते. व्हाई? बिकॉज ट्रस्टी इज द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड डील्स विद इट एज प्रिंसिपल. लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का, वो सिर्फ एजेंट है कंपनी का. सो देयरफॉर ही आल्सो कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन नेम. तो जो ट्रस्टी है वो अपने नाम पे ट्रांजैक्शंस कर सकता है, लेकिन डायरेक्टर अपने नाम पे नहीं करता, वो सिर्फ कंपनी के नाम पे ही कर सकता है. तो इस केस में इट इज नॉट कंप्लीटली अ ट्रस्टी बट इट कैन एक्ट एज अ ट्रस्टी. द लास्ट पॉइंट इज, आर डायरेक्टर्स द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी? अब हम ये कहना चाहते हैं कि क्या डायरेक्टर्स एम्प्लॉई हैं कंपनी के? तो हम बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्टर्स तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्ट करते हैं हम उन्हें. एम्प्लॉइज को इलेक्ट थोड़ी ना करते हैं, उनको तो हायर करते हैं हम. सो एज सच directors are agents of the company but they are not employees or servants of the company. However, किसी लॉ ने प्रिवेंट नहीं करा है कि डायरेक्टर क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता. तो अगर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है डायरेक्टर कंपनी के साथ दैट ही विल एक्ट एज एन एम्प्लॉई आल्सो, तो वो कर सकता है. सो अकॉर्डिंगली
where a director accepts employment under the company under a separate contract of service in addition to directorship, he is also treated as an employee. अब अगर वो एम्प्लॉय है तो उसे रेम्यूनरेशन भी मिलेगा और बेनिफिट्स भी मिलेंगे जो बाकी एम्प्लॉयज को मिल रहे थे. सो कंपनीज एक्ट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो टू क्लोज दिस चैप्टर, ये टॉपिक को क्लोज करने का समरी स्टेटमेंट क्या है? इसका समरी स्टेटमेंट ये है कि टू सम अप, directors are professional men managing a company for the benefit of themselves and of all the shareholders in it. They stand in a fiduciary position towards the company. Fiduciary क्यों? मतलब बीच की position towards the company in respect of their powers and capital under their control. कि fiduciary इस वजह से क्योंकि वो owner नहीं है असल में, वो company के behalf पे पावर्स हैं उनके पास कंट्रोल करने की कंपनी के अफेयर्स. दैट इज व्हाई दे आर फिड्यूशियरी इन नेचर. ठीक है. सो मॉडर्न डायरेक्टर्स आर समथिंग मोर देन मर एजेंट्स और ट्रस्टीज. दे आर करेक्टली रिकॉग्नाइज्ड एज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द कंपनी. तो क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई डायरेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द कंपनी. तो तुम्हें जो पिछले 3-4 पॉइंट्स हमने पढ़े कि दे कैन एक्ट एज एजेंट्स, दे कैन एक्ट एज ट्रस्टीज, दे कैन एक्ट एज मैनेजिंग डायरेक्टर्स, दे कैन एक्ट एज एम्प्लॉइज, ये चारों पॉइंट्स तुम एक्सप्लेन करोगे और फिर ये एंड में ये सम अप कंक्लूजन लोगे. सो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं दे आर द ब्रेन एंड द ओनली ब्रेन ऑफ द कंपनी विच इज द बॉडी एंड द कंपनी कैन एंड डज एक्ट ओनली थ्रू देम. तो जो कंपनी है वो सिर्फ डायरेक्टर्स के थ्रू ही काम कर सकती है. अब आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का पॉइंट नंबर 5 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले 4 पॉइंट्स करते हैं, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे आएंगे. अब सबसे पहला पॉइंट कि हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई डायरेक्टर्स होते क्या हैं, डायरेक्टर्स किस तरीके से एक्ट करते हैं, और आज की डेट में हमें ये समझ में आ गया कि वो डायरेक्टर्स आर द प्रिंसिपल और द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द कंपनी. अब बात आती है कि डायरेक्टर्स कंपनीज एक्ट के हिसाब से कौन डायरेक्टर बन सकता है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या प्रोविजंस हैं फॉर द डायरेक्टर्स. तो नंबर 1, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर डायरेक्टर मस्ट बी एन इंडिविजुअल. भाई सही बात है, इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए वो. मतलब कोई फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते आप डायरेक्टर के फॉर्म में, कोई कॉर्पोरेट बॉडी को अपॉइंट नहीं कर सकते आप डायरेक्टर के फॉर्म में, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस को अपॉइंट नहीं कर सकते आप. मतलब जो हमने जो पर्सन की डेफिनेशन होती है ना, इनकम टैक्स एक्ट में देख लो या किसी भी एक्ट में देख लो, कंपनीज एक्ट में भी देख लो, तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट फर्म्स, क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एक्सेट्रा. तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि डायरेक्टर सिर्फ एक इंडिविजुअल हो सकता है क्योंकि एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग ही डायरेक्टर बन सकता है. सेकंड कंडीशन क्या लगा रखी है 149 में. अच्छा, इसके अंदर कौन सा सेक्शन याद करना है वो मैं अभी बता दूंगी. अभी यहाँ पे ये सेक्शन 149 याद करने की, मतलब सेक्शन वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये हेडिंग्स पता होनी चाहिए कि डायरेक्टर्स मस्ट बी एन इंडिविजुअल. सेकंड, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बताना चाहिए. तो हमें पहले से ही पता है, हमने शुरुआत से पढ़ा है कि भाई पब्लिक कंपनीज के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, प्राइवेट में मिनिमम 2 होने चाहिए, 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 होना चाहिए. अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या नहीं हो सकता, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो किसी भी कंपनी में हो सकता है वो 15 से ज्यादा नहीं हो सकता है. दैट मीन्स 15 इज द लिमिट. अगर इन केस आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करना चाहते हो तो उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब सारे शेयर होल्डर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी. एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. मतलब ये जब एक्ट आया था उसके विद इन 1 ईयर जितनी भी पब्लिक, प्राइवेट या 1% कंपनी बनी उनको 1 साल के अंदर अंदर ये मिनिमम इतने डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी. थर्ड पॉइंट क्या है कि रेसिडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. तो ये क्या बोलता है कि भाई कोई भी डायरेक्टर जो आप अपॉइंट करते हो उसमें से एक डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया. अब अगर तुमने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है, अब मुझे नहीं पता तुम कौन से, मेरे ख्याल से तुम फर्स्ट ईयर वाले हो, आई डोंट नो तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, तो तुम्हें रेसिडेंट होना पड़ेगा. तो रेसिडेंट होने की ना कुछ कंडीशंस होती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तो उसमें से एक इसमें लिखी हुई है जो बिल्कुल क्लियर कट कंडीशन है. क्या कंडीशन है कि भाई वो पर्सन stays in India for not less than 182 days. मतलब एक साल में अगर वो 180 मतलब 365 डेज होता है ना, तो अगर 182 डेज तक रहता है तो वो रेसिडेंट है.
सो जो भी आपकी कंपनी है उसके कम से कम एक डायरेक्टर रेसिडेंट होना चाहिए. सो एवरी एग्जिस्टिंग कंपनी हैज टू अप्लाई दिस एक्ट. वुमेन डायरेक्टर, अब जो कंपनीज है उसके अंदर बता रखा है कि भाई इतनी वुमेन डायरेक्टर्स तो होनी चाहिए. तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा है कि कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. ठीक है, जरा देखें. अब रूल 3 इन्होंने बोला कि भाई कम से कम एक तो होनी चाहिए. साइड बाय साइड अब रूल नंबर 3 भी पढ़ो इसके साथ. क्या लिखा है इन्होंने, दैट सेक्शन 149(3) जो वुमेन डायरेक्टर्स का है वो बोलता है दैट such class or classes of companies as may be prescribed by the central government must have at least one woman director. The central government has prescribed such class or classes of, मतलब ये जो such class कौन सी class of companies हैं जिनके ऊपर ये है कि that at least one woman director should be there, वो class of companies यहाँ रूल नंबर 3 में बताया हुआ है. तो वो क्या है, that every listed company के अंदर कम से कम एक woman director होनी चाहिए. एनी, अगर तुम लिस्टेड नहीं हो लेकिन यू आर एनी अदर पब्लिक कंपनी, लेकिन तुम्हारी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तब भी तुम क्या बोलते हैं एक वुमेन डायरेक्टर रखोगे. और अगर तुम्हारा टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है तो भी तुम एक वुमेन डायरेक्टर रखोगे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर तुम ये नहीं मानते तो तुम्हें फाइन लग सकता है. क्या लग सकता है, फाइन लग सकता है तुम्हें. जस्ट अ सेकंड, वेयर डिड इट गो, हाँ ये. सो कितना फाइन लग सकता है, 50,000 का फाइन ऑन कंपनीज विदाउट वुमेन. ये वन टाइम पेनल्टी थी, 2015 तक की थी. 2015 के बाद 1,000 रुपए का डेली फाइन लग रहा है जिसने अपॉइंट नहीं करे. सो टेक्निकली आज की डेट में फ्रॉम October 1st 2005 द फाइन विल बी 5,000. मतलब ये जो जब आया था एक्ट उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फाइन के मॉड्यूल सेट करे थे कि ये लोग कंपैटिबिलिटी में आ जाए. अब आज की डेट में क्या हो गया है कि तुम्हें 5,000 ईच डे ऑफ फाइन है ऑफ द नॉन कंप्लायंस. ठीक है. अच्छा, कोई नई कंपनी जो बन रही है उसे 6 महीने के अंदर अंदर ये वाले प्रोविजन को फॉलो करना है, अदरवाइज उसको भी पेनल्टी लगेगी. कोई भी वैकेंसी अगर है, सपोज एक वुमेन डायरेक्टर रिटायर हो जाती है या बाय चांस उसकी डेथ हो जाती है, तो वो फुलफिल हो जानी चाहिए. कब तक फुलफिल हो जानी चाहिए, इट शुड नॉट टेक, इट शुड बी फुलफिल्ड विद इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग. या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर दो या फिर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द वैकेंसी, whichever is later. whichever is later का क्या मतलब है, या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग वाला टाइम या फिर 3 महीने, जो भी तुम्हें लेटर है वो तुम्हारा लिमिट है. उसके अलावा अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारे फिर पेनल्टी लगेगी 5,000 ईच डे फॉर नॉन कंप्लायंस. तो पहले 4 पॉइंट्स क्या थे हमारे, पहले 4 पॉइंट्स बेसिकली थे कि जो डायरेक्टर्स हैं वो आपके रेसिडेंट होने चाहिए. ठीक है. फिर उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रिस्क्राइब कर दिए इन लोगों ने. एंड देन वुमेन डायरेक्टर्स का बता दिया इन्होंने. ठीक है. सो डायरेक्टर मस्ट बी एन इंडिविजुअल. ठीक है. मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो गए हमारे 3 to 1 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी. द मैक्सिमम इज 15. रेसिडेंट होना चाहिए वो इंडिया के अंदर, मतलब 180 डेज से ज्यादा वो रह चुका है इंडिया में 1 साल में. वुमेन डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी हुज टर्नओवर इज ऑफ अ सर्टेन लिमिट, 100 करोड़ से ऊपर है, एंड इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 300 करोड़, इन तीनों में जो भी है उस केस में तुम्हें एक वुमेन डायरेक्टर तो रखनी पड़ेगी. अगर नहीं रखते तो वो नॉन कंप्लायंस के तहत तुम्हें फाइन देना पड़ सकता है. और अगर कोई भी वैकेंसी होती है तो भी आपको उसे जल्दी से जल्दी फिलअप करना है, उसके लिए कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दी है. सो दिस इज सो फार व्हाट वी हैव लर्नड. अब हम आ गए आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते क्या है. ठीक है. एंड फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अंदर क्या प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, एंड सो ऑन. राइट. लेट मी सी इफ यू हैव आस्क्ड एनी सच क्वेश्चंस. कीमती, आई होप दैट नाउ यू आर एबल टू सी द क्लास. चेक करो, तुम्हारा आई गेस नेटवर्क इशू होगा. देवांशी, तुम भूषण कुमार गोयल कर रहे हो, तुम्हें ये चैप्टर नहीं मिल रहा. दैट इज वेरी अनलाइकली. जो अगर आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे जिस पे भी हो, आप भूषण कुमार का टेबल ऑफ कंटेंट्स मुझे भेज दो, मैं देख के बता दूंगी कि इस चैप्टर में मिल जाएगा. चेतना इज सेइंग कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर में कंफ्यूजन हो रही है. देखो, शेयर होल्डर तो बहुत सारे होते हैं ना कंपनी के.
मैंने भी शेयर्स खरीद रखे हैं, मैं भी शेयर होल्डर हो गई किसी कंपनी की, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होता है? वो लोग होते हैं जो इलेक्ट होते हैं और उनका काम होता है कि कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लेना। तो जो डायरेक्टर हो गए वो टेक्निकली जो हैं वो डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट वाले लोग हो गए, और शेयर होल्डर्स हो गए ओनर्स। अब ओनर्स डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। कुछ ओनर्स होते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करके छोड़ देते हैं, कुछ ओनर्स होते हैं जो डिविडेंड लेके छोड़ देते हैं, कुछ ओनर्स होते हैं जो डायरेक्टरशिप लेते हैं और फिर कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट बनते हैं। सो डायरेक्टर्स इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स आर एवरीबडी हु हैज इन्वेस्टेड इन द कंपनी। अच्छा, द स्क्रीन इज नॉट क्लियर। आई मेक श्योर कि अभी तो मैं कुछ खैर शेयर ही नहीं कर रही, आई मेक श्योर कि स्क्रीन क्लियर हो, क्योंकि मेरी तरफ से मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, पकड़ता है, टच वुड, एंड क्लियर होना चाहिए। बाकी लेट मी सी। ठीक है, सो नो अदर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सो फार। तो अब हम नहीं, ये तुम्हारा 10 ईयर है, वो SOL वाला है, उससे नहीं पढ़ते हम। ओके, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब बिफोर आई शो यू कि क्या प्रोविजंस है, मैं चाहती हूँ कि हम प्रोविजंस के साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ें, राइट? तो अब ये जो है हमारा आर्टिकल, इसके अंदर बहुत अच्छी बात है कि इस आर्टिकल के अंदर ये जो टैक्स गुरु का आर्टिकल है, इसमें हर एक प्रोविजन के बाद एक एग्जाम्पल दे रखा है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? ठीक है, तो हम कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पॉइंट नंबर 5, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब इसके अंदर कुछ डिफरेंट प्रोविजंस हैं, जिसके अंदर तुम्हारा जो सेक्शन नंबर 149(6) है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो कहीं 149(6), ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। अब आ जाओ कि who are independent directors. So an independent director is a non-executive director of a company and helps the company in improving the corporate credibility and governance standards. अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? सी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, लेकिन he is on the board of the company and he has the expertise, integrity and the independence to balance the interest of various stakeholders. तो कहने का मतलब क्या है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो है जो डे टू डे फंक्शनिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वो एक पार्शियल व्यू पॉइंट देता है कंपनी के बेनिफिट के लिए। तो उसका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेते हैं उसके पास एक्सपर्टीज है, उसके पास इंटीग्रिटी है, वो इम्पार्शियल होके अपना व्यू पॉइंट रखेगा और वो सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड रिप्रेजेंट करता है। सो इस वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर सारे डायरेक्टर्स कंपनी वाले ही हो जाएंगे, मतलब इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, वो इम्पार्शियल है। अगर सारे डायरेक्टर्स पार्शियल हो जाएंगे तो फिर वो अपना बेनिफिट देखेंगे और हो सकता है कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ काम ना करें। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इम्पार्शियल लोग होते हैं जिनका काम होता है कि सारे स्टेक होल्डर्स के बिहाफ पे काम करना। सो an independent director is a non-executive director of a company which does not take part in the day-to-day functioning, but it makes sure that nothing wrong is happening for any stakeholder. They help the company in improving the corporate credibility, partiality कम करा और governance के standards हो। तो section 149 of the Companies Act, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं section 149(6). ये क्या बताता है? that who can be an independent director। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो इम्पार्शियल वे में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह काम करता है, जिसके पास एक्सपर्टीज होता है, इंटीग्रिटी होती है और इंडिपेंडेंस होता है कि वो बैलेंस कर सके सबके इंटरेस्ट्स। सो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु इज नॉट अलाइंड विद आइदर द मैनेजमेंट और द प्रमोटर्स एंड ही विल एक्सरसाइज हिज ओन पर्सनल जजमेंट। तो ये हमें समझ में आ गया दैट व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब क्वेश्चन आता है हु कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो उसके लिए सेक्शन 149(6) बना हुआ है। तो सेक्शन 149(6) बोलता है कि भाई कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। सो नंबर 1, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता। मतलब
कोई भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनको अलग अलग फंक्शंस मिल रखे हैं अपनी कंपनी में, वो तीनों ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। दैट इज पॉइंट नंबर 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई XYZ बैंक ने ग्रांट करा 20 लाख का लोन सी लिमिटेड को। XYZ बैंक ने अपॉइंट करा मिस्टर एस को एज अ नॉमिनी डायरेक्टर इन सी लिमिटेड। तो जब बैंक ने बड़ा लोन दिया तो उसने नॉमिनी डायरेक्टर बना दिया मिस्टर एस को। अब एस अगर चाहता है कि वो उस सी लिमिटेड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए तो वो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी एक नॉमिनी डायरेक्टर है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, ये तीनों टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। अब आ जाओ सबसेक्शन ए। अब ए पार्ट आ गया। इसमें पहले 6th बोलता है कि ये लोग तो नहीं बन सकते। अब उसके सब पार्ट है। ये सब पार्ट क्या बोलता है? दैट in the opinion of the board, this independent director should be a person of integrity and should possess relevant expertise and experience। कहने का मतलब क्या है कि ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये इसके पास EEE होने चाहिए। दैट इज सॉरी IEE होना चाहिए। दैट इज कैपिटल I is for integrity, E is for expertise and another E is for experience। सो यानी कि सबसे पहला पॉइंट कि भाई ये तीनों चीजें नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट कि इसमें IEE होना चाहिए, मतलब इंटीग्रिटी का पर्सन होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही किसी को भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। So for example, in the opinion of the board of directors, Mr. S, who is proposed as an independent director, should possess the relevant experience and should be trustworthy। तो ये इसका मतलब है इस प्रोविजन का। नेक्स्ट बी प्रोविजन क्या बोलता है? अब बी के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, देख रहे हो तुम, बी के 2 पार्ट्स हैं। अब बी क्या बोल रहा है? बी बोलता है हु इज और was not a promoter of the company or its holding subsidiary or associate company। मतलब कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रमोटर नहीं हो सकता कंपनी का। मतलब ना वो कंपनी का प्रमोटर होगा, ना वो उसकी होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर होगा, ना वो उसकी सब्सिडरी कंपनी का प्रमोटर होगा, और ना वो किसी एसोसिएट कंपनी का प्रमोटर होगा। एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एस इज प्रपोज्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो मिस्टर एस है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, तो वो प्रमोटर नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता? अब हम इसको एक एक्रोनिम से डिनोट करते हैं। कई कितने भी तुम यूट्यूब वीडियोस देख लो, उन्होंने कैश एक्रोनिम यूज कर रखा है। ये कैश एक्रोनिम किसके लिए यूज कर रखा है? कंपनी इज फॉर सी, ए इज फॉर एसोसिएट, एस इज फॉर सब्सिडरी एंड एच इज फॉर होल्डिंग। अगर तुम्हें इस टर्म्स में दिक्कत है तो यानी कि तुम्हें टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला टॉपिक दोबारा पढ़ना है। दैट इज लेसन नंबर 1, आज जाके देख लेना। बट द पॉइंट हियर इज कि कुछ भी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, उसका वो प्रमोटर नहीं हो सकता। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बी पार्ट में? हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स। एक तो वो खुद प्रमोटर नहीं हो सकता और उसके कोई रिलेटिव्स भी प्रमोटर नहीं होने चाहिए। मतलब भाई अगर मैं हूं, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, तो पहली बात मैं प्रमोटर नहीं हो सकती उस कंपनी की जिस कंपनी में मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। मैं उसकी होल्डिंग कंपनी की भी प्रमोटर नहीं हो सकती, सब्सिडरी की भी प्रमोटर नहीं हो सकती, एसोसिएट कंपनी की भी प्रमोटर नहीं हो सकती, मान ली। सेकेंड पार्ट, मेरे रिलेशन में भी कोई नहीं होना चाहिए। सो इफ मिस्टर एस is proposed to be an independent director, but Mr. H कौन है? ब्रदर है वो मिस्टर एस का, he is a promoter in some company, तब नहीं हो सकता। मतलब अगर मेरा भाई या मेरी बहन उसी कंपनी में या उसकी सब्सिडरी कंपनी में या उसकी होल्डिंग कंपनी में या उसकी एसोसिएट कंपनी में, इस कैश में अगर वो प्रमोटर है तो फिर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकती। सो 149(6) के अंदर हमने ये अभी पॉइंट नंबर ए पढ़ा, पॉइंट नंबर बी पढ़ा, उसके 2 पार्ट्स पढ़े। अब हम आ गए पॉइंट नंबर सी पर। पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है? दैट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज समवन हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन रेम्यूनरेशन as such director or having transaction not exceeding 10% of his total income। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं हो सकती। What is the meaning of pecuniary relationship? मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एनी नो टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद द कंपनी। अब इसका क्या मतलब है? कुछ डेफिनेशन तो होनी चाहिए, तो इसमें क्लियरली डेफिनेशन दे रखी है। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो 10% ऑफ द टोटल इनकम से ज्यादा है, वो मेरी उस कंपनी से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। रेम्यूनरेशन हो सकता है लेकिन और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अब इस पॉइंट को समझते हैं हम जरा।
इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एग्जाम्पल समझना जरूरी है कि पेक्यूनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब है। कि भाई द टर्म पेक्यूनरी मीन्स रिलेटिंग टू और कंसिस्टिंग ऑफ मनी। मतलब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कुछ भी कंपनी से रिलेटेड मनी नहीं कमा सकता, लेकिन एक लिमिट बता दी 10%। तो क्या मतलब है कि भाई इफ मिस्टर एस जो था ना हमारे शुरुआत से वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, अब मिस्टर एस को रेम्यूनरेशन मिल रही है XYZ लिमिटेड से, कोई बात नहीं, और द ट्रांजैक्शन ही एंटर्ड विद द कंपनी इज लेस देन 10% ऑफ द टोटल अमाउंट। तो अगर उसे रेम्यूनरेशन मिल रही है और उसकी ट्रांजैक्शन जो कंपनी के साथ है वो 10% से कम है, तब तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन सपोज उसकी टोटल इनकम 50 लाख है, लेकिन उसका 10% कितना होगा, 5 लाख। तो अगर 5 लाख से कम कर रहा है, वो कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी इनकम के 5 लाख से ऊपर अगर वो कंपनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उस केस में फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई एस इज हैविंग अ फ्रेंचाइज ऑफ फ्रिज मैन्युफैक्चर्ड बाय XYZ लिमिटेड। अब एक XYZ लिमिटेड कंपनी थी जो फ्रिज बना रही थी, उस फ्रिज की एक फ्रेंचाइज मिस्टर एस के पास है। तो अब मिस्टर एस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि उनका कंपनी से या एसोसिएट कंपनी से या सब्सिडरी से या एच यानी कि होल्डिंग कंपनी, इनके साथ पेक्यूनरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया। So, if any person has a pecuniary relationship with its promoters or the directors during the 2 immediately preceding financial years or during the current financial year, तब भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। मतलब ये जो मैं चेक कर रही हूँ ना कि पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है, वो ऐसा नहीं कि बस इस साल नहीं है लेकिन पिछले साल था, नहीं, तुम्हारा 2 इमीडिएटली मतलब तुम्हारा टेक्निकली करंट ईयर में भी होना चाहिए और पिछले 2 साल में भी होना चाहिए। मतलब टेक्निकली 3 साल तक तुम्हारा नहीं होना चाहिए कोई रिलेशन। सो बिफोर आई गो अहेड, एक बार मैं पूछना चाहती हूँ कि कुछ समझ में आ रहा है इसमें? इज इट मेकिंग सम सेंस और शुड आई रिपीट द फर्स्ट 3 पॉइंट्स ऑफ सेक्शन 149(6)? आज ही मैं कह रही थी कि मेरा नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता और आज ही थोड़ा स्लो चलना शुरू हो गया। Let me see if there are any questions. संस्कार सेक्शन भी याद करने एग्जाम के लिए नहीं, सेक्शन याद करना है, लेकिन ये वाला सेक्शन याद करना है, दैट इज 149(6) जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का है। मैम सब्सिक्वेंट डायरेक्टर क्या होता है? सब्सिक्वेंट का मतलब मुझे नहीं पता कि तुमने कहाँ पे पढ़ा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सब्सिक्वेंट का मतलब है कि एक डायरेक्टर बना, फिर उसके जाने के बाद कोई और डायरेक्टर आया, दैट इज सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। देखना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। मैम व्हाट इज डीमैट पार्टनर्स? डीमैट, are you sure it's the correct terminology that you have used, Rinki? I'll check it up. But the point is कि भाई कोई पार्टनर और डायरेक्टर के बीच का डिफरेंस तुम जानना चाहती हो। आई थिंक यही तुम्हारा क्वेश्चन है। अच्छा, अमन है आज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो बोल रहा है मैम इफ माई ब्रदर इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन आई बी द प्रमोटर ऑफ द कंपनी? अच्छा, इफ माई ब्रदर इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन आई बी द प्रमोटर? पहली बात, अगर तुम्हारा ब्रदर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और तुम फिर प्रमोटर बन जाते हो तो उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा ही नहीं, क्योंकि उसका भाई जो उसका रिलेटिव है वो प्रमोटर बन गया कंपनी में। सो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दिवांशी पूछ रहे मैम पेक्यूनरी रिलेशनशिप का मतलब है? पेक्यूनरी का मतलब है कि भाई रिलेटिंग टू, रिलेशन, मनी, मनी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो होता है पेक्यूनरी रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप जो मनी के ऊपर बेस्ड है हम उसे बोल रहे हैं पेक्यूनरी रिलेशनशिप। तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है अपनी टोटल इनकम का मोर देन 10% अगर वो कंपनी के थ्रू अर्न कर रहा है तब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। और ये जो भी हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं, ये कंडीशन सिर्फ करंट ईयर में ही फुलफिल नहीं होनी चाहिए,
उसके पिछले 2 साल में भी फुलफिल होने चाहिए, प्रीसीडिंग द 2 years एज वेल। हाँ जी, मतलब 3 साल हो गए टेक्निकली। पेक्यूनरी रिलेशनशिप फिर से बता दीजिए, अभी बता देती हूँ। वंशिका कह रही है ये वाला टॉपिक थोड़ा ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए कह रही हूँ धीरे धीरे आराम से दोबारा सुन लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी शॉर्ट में दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ जो मैंने अभी करा है, ठीक है रहमान? हाँ जी, आई कैन डिस्कस द पेक्यूनरी रिलेशनशिप अगेन, ठीक है? तो अब हम दोबारा से शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन। ओके, हम कह रहे हैं दैट देयर शुड बी नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप ऑफ दैट पर्सन विद कैश। मतलब जो भी पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है उसका पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, कैश के साथ। कैश की क्या क्रोनोलॉजी है? कंपनी के साथ, एसोसिएट कंपनी के साथ, सब्सिडरी के साथ या होल्डिंग कंपनी के साथ, मतलब चारों के साथ ही नहीं हो सकता। तो भाई सबसे पहले पेक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटिंग टू मनी। सो मनी से रिलेटेड रिलेशनशिप उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंपनी से नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है कि एक पर्सन जिसे रेम्यूनरेशन मिल रही है कंपनी से, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो रेम्यूनरेशन के अलावा, सैलरी के अलावा कोई ट्रांजैक्शन करता है कंपनी के साथ, वो 10% से अगर ऊपर है तो उस केस में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है? अब इसमें एग्जाम्पल मैंने दिया कि भाई एक कंपनी जो है फ्रिज मैन्युफैक्चर करती है, तो उसकी एक फ्रेंचाइजी मिस्टर एस के नाम पे है, तो मिस्टर एस उस फ्रेंचाइजी से इनकम कमा रहा होगा, राइट? तो उस केस में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड है कैश से। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अभी तक हमने क्या पढ़ा है सेक्शन 149(6) में, सबसे पहला पार्ट ये होता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता, फुल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता। ये पॉइंट नंबर 1 था। फिर हमने सबसेक्शन ए पढ़ा, उसने बोला कि वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसमें आईईई होना जरूरी है, मतलब इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर तीसरा मैंने पढ़ा बी पार्ट, वो प्रमोटर नहीं हो सकता ऑफ द कंपनी। किसका प्रमोटर नहीं हो सकता? कैश का प्रमोटर नहीं हो सकता, मतलब कंपनी का भी प्रमोटर नहीं हो सकता, एसोसिएट का नहीं हो सकता, सब्सिडरी का नहीं हो सकता, होल्डिंग का नहीं हो सकता, और ना उसका कोई रिलेटिव उस कैश का प्रमोटर हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता वो। तो यानी कि कोई भी रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। देख रहे हो कि मतलब बिल्कुल क्लियर कट बता रखा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और इट मेक सेंस ऑल्सो कि भाई अगर उसका खुद प्रमोटर नहीं है तो उसका भाई बहन प्रमोटर है, तो उस केस में फिर वो कैसे इम्पार्शियल व्यू पॉइंट देगा? तो होना ही नहीं चाहिए उसका रिलेटिव भी उस पोजिशन पे। थर्ड पार्ट बोलता है दैट उसका कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए खुद का। दैट मीन्स उसका कैश के साथ कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मनी से रिलेटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, किसी ईयर में नहीं होना चाहिए, करंट ईयर में नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में, मतलब 3 साल तक लगातार उसका कोई रिलेशन नहीं है। उस केस में हम उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं। अब डी पार्ट पे आ जाओ, उससे भी तुम्हें सी पार्ट और क्लियर हो जाएगा। डी पार्ट बोलता है कि उसका रिलेटिव के पास भी नहीं होना चाहिए, जो अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था ना कि भाई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इसी तरह रिलेटिव के साथ भी। तो क्या लिखा हुआ है दैट नन ऑफ द रिलेटिव्स, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी। तो क्या क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई उसके रिलेटिव का भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब उसको डिफाइन करने का क्या तरीका है? नंबर 1 कि उसका कोई भी रिलेटिव के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कंपनी में, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसका कंपनी में, और कैश में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये तीनों चीजें, मतलब सिक्योरिटी और इंटरेस्ट कैश में नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग द 3 years, provided that the relative may held security or interest in the company of face value not exceeding 50 lakhs। कहने का मतलब ये है कि भाई वो खुद तो पेक्यूनरी रिलेशनशिप रख ही नहीं सकता, उसका रिलेटिव भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं रख सकता। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वो सिक्योरिटी नहीं रख सकता और इंटरेस्ट नहीं रख सकता। किस में नहीं रख सकता? कैश में नहीं रख सकता। मतलब कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए, होल्डिंग के साथ नहीं होना चाहिए, सब्सिडरी के साथ नहीं होना चाहिए, एसोसिएट के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक लिमिट डाल दी कि भाई 50 लाख तक है तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर नहीं हो सकता। तो क्या लिखा हुआ है
कि अगर भाई उसके पास सिक्योरिटी और इंटरेस्ट है बट वो 50 लाख के अंदर अंदर है या फिर 2% ऑफ द पेड अप वैल्यू के अंदर अंदर है, तब तो कोई बात नहीं। अगर 2% से ज्यादा है या 50 लाख से ज्यादा है, उस केस में भाई फिर तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या लिखा हुआ है भाई, पेड अप कैपिटल XYZ की 100 लाख है, ठीक है, और जो मिस्टर एच है, जो ब्रदर है एस का, उसके पास 3% शेयर है, तो भैया उसके पास 2% से ज्यादा हो गया सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो उस केस में उसके रिलेटिव का मोर देन 2% शेयर है, इंटरेस्ट है कंपनी में, तो फिर जो एस है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब उसी का सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? सेकेंड पार्ट ये बोल रहा है 149(6) का डी पार्ट कर रहे हैं हम। डी पार्ट का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि भाई सिक्योरिटी तो होनी ही नहीं चाहिए, फिर उसके बाद बोल रहा है ही शुड नॉट बी इंडेटेड टू द कंपनी। मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनना चाहता है उसका रिलेटिव इंडेटेड नहीं होना चाहिए कंपनी से, कैश में इंडेटेड मतलब डेट नहीं होना चाहिए कोई। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एच ब्रदर ऑफ मिस्टर एस जो बनना चाहता है ओव्स मनी, मतलब उसने लोन ले रखा है XYZ से ड्यूरिंग दी 3 फाइनेंशियल ईयर्स डिस्कस्ड, तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये रूल बना दिया भाई, सही बात है ना। फिर उसका एक इंटरेस्ट हो जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जब उसी का रिलेटिव ने कोई लोन ले रखा है और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाएगा तो वो अपने रिलेटिव को कुछ फेवर दिलवा सकता है, तो वो चीज हम नहीं चाहते। नेक्स्ट क्या रखा हुआ है, दैट नन ऑफ हुज रिलेटिव्स has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness। अब कहने का मतलब क्या है कि एक तो आपका रिलेटिव कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप रख ही नहीं सकता। उस पेक्यूनियरी रिलेशन को इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कोई सिक्योरिटी और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंडेटेडनेस नहीं होनी चाहिए, और तीसरा इन्होंने बोल दिया कि कोई गारंटी भी नहीं देनी होनी चाहिए कि भाई आपने कुछ कोलैटरल दे रखा है। सो अगर किसी रिलेटिव ने कोई गारंटी दे रखी है इन और कोई या फिर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है इन कनेक्शन टू सम अदर पर्सन्स लोन टू द कैश, मतलब कंपनी में या होल्डिंग कंपनी में, तो उस केस में भी फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एच जो ब्रदर है इसका, उसने गारंटी दे रखी है किसी थर्ड पर्सन के लिए, मतलब मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, मेरी बहन ने अपने किसी फ्रेंड ने जो लोन ले रखा था कंपनी में उसके लिए गारंटी दे दी, तब मैं नहीं बन सकती इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि मेरा कोई ना कोई घुमा फिरा के रिलेशनशिप निकल गया कैश के साथ। सो आई कैन नॉट बी दी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और सब में रूल क्या है भाई, 3 साल का चेक हो रहा है, करंट ईयर और 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। सो ये हमने पढ़े पहले 4 पॉइंट। अच्छा, तो अब इन्होंने यही क्लियर कट लिखा हुआ है क्या कि भाई और अब इन्होंने ये वाले तो स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद क्लैरिटी के लिए लिख दिया कि और कोई भी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कैश के साथ। कितने का? 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। तो एग्जाम्पल, भाई XYZ लिमिटेड की बात कर रहे हैं, उसका ग्रॉस टर्नओवर 100 करोड़ का है, ठीक है। तो 100 करोड़ का 2% कितना होगा? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ से ज्यादा का अगर कोई भी रिलेशनशिप निकल के आ जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तब फिर वो नहीं बन सकता। अगर 2 करोड़ से कम है कोई बात नहीं। सो व्हाट इट इज सेइंग इज दैट मिस्टर एस वांट्स टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन मिसेस एस जो उसकी वाइफ है उसका 2 करोड़ से ज्यादा का पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, तो उस केस में मिस्टर एस नहीं बन पाएंगे। सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट में। अभी ना तुम लोग एक बार ये पढ़ लो, उसके बाद मैंने एक ना एक मेरे पास पिक्टोरियल फॉर्म में ये सेम चीज है, तो वो हम डिस्कस करेंगे क्लास से पहले, ठीक है। ई पार्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज समवन नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स होल्ड एनी की मैनेजरियल पर्सनल। अब हम ई पार्ट में आ गए, तो ई पार्ट बोल रहा है कि आप KMP नहीं हो सकते, दैट इज की मैनेजरियल पर्सनल नहीं हो सकते कंपनी के, मतलब जो मेन होते हैं ना CEOs COO, ये नहीं बन सकते आप। और हैज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग, तो मतलब आप खुद या आपका कोई भी रिलेटिव की मैनेजरियल पर्सनल नहीं हो सकता, और एम्प्लॉई भी नहीं हो सकता। किसका एम्प्लॉय नहीं हो सकता? कैश का, ठीक है।
एग्जाम्पल, एक सेकंड, और हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और ओके एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एस वाज एन एम्प्लॉय और केएमपी ऑफ XYZ लिमिटेड, अब वो किसका है, कैश का, मतलब चारों चीजों का एक साथ, मतलब जब भी मैं बोलती हूँ XYZ लिमिटेड तो समझ लो XYZ लिमिटेड से रिलेटेड सारी कंपनीज, एसोसिएट भी, सब्सिडरी भी, खुद की भी। तो द पॉइंट इज कि अगर मिस्टर एस एम्प्लॉई है XYZ का या KMP है XYZ का, और मिस्टर एस का फादर या फिर उसका कोई भी रिलेटिव एम्प्लॉई है या फिर KMP है, उस केस में फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। इफ मिस्टर एस फादर वाज एन एम्प्लॉय 2 years बिफोर, अगर वो 2 साल पहले था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करंट ईयर और इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 years वाला जो इशू था ना, उसमें नहीं हो सकता, उससे पहले। So in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed, मतलब 3 साल से पहले था, अगर करंट ईयर और पहले 2 साल मिला के अगर उससे पहले एम्प्लॉय था तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके उस टाइम में एम्प्लॉय है तब प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है, if he or himself or any of his relatives has been an employee or proprietor of a partner in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed, तो वो मतलब एम्प्लॉय नहीं हो सकता, प्रोप्राइटर नहीं हो सकता या पार्टनर नहीं हो सकता, उसका रिलेटिव भी नहीं हो सकता। किस फॉर्म में, अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स और कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस, एनी लीगल और कंसल्टिंग फर्म उस जिसने ट्रांजैक्शन करा हुआ है 2% से ज्यादा। कहने का मतलब क्या है कि भाई आप जो है, आप खुद या आपका कोई भी रिलेटिव किसी भी फॉर्म में, इन 2 फॉर्म्स में रिलेटेड नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, यानी कि ऑडिटर नहीं होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए, कॉस्ट ऑडिटर नहीं होना चाहिए, कैश में कोई लीगल या कंसल्टिंग फर्म की तरह एक पार्टनर की तरह एडवाइस देने वाला नहीं होना चाहिए। सो क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई इफ मिस्टर एस हैज बीन एन एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द फर्म ऑफ ऑडिटर्स, तो जो मिस्टर एस हैं वो एम्प्लॉय रह चुका है या प्रोप्राइटर रह चुका है या पार्टनर रह चुका है या उसका रिलेटिव ये सब कुछ रह चुका है, ऑडिटर रह चुका है या कंपनी सेक्रेटरी रह चुका है, तब फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। दूसरा एग्जांपल, भाई मिस्टर एस पार्टनर है PQR लीगल फर्म का, वो लीगल फर्म 2% से ज्यादा कमा रही है, 2% से ज्यादा टर्नओवर से ज्यादा कमा रही है XYZ लिमिटेड से, तो भाई तुम तो इनकम कमाते हो उस कंपनी से, तुम उसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे बन जाओगे, तुम तो फिर अपना फायदा देखोगे। इस वजह से ये सारे रूल्स निकाले गए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, that person neither himself or his relatives holds together 2% or more of the total voting share। अगर आपके पास 2% से ज्यादा का वोटिंग शेयर है कैश में, या आपके रिलेटिव का 2% से ज्यादा वोटिंग शेयर है कैश में, तभी भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, 6th पार्ट, neither himself nor any of his relatives is a chief executive or director by whatever name called of a non-profit organization। अगर आप खुद या फिर आपका कोई रिलेटिव किसी NPO का चीफ एग्जीक्यूटिव है, मतलब हेड है या डायरेक्टर है उस NPO में, और आप 25% से ज्यादा पैसे उस कंपनी से लेते हो, तो उस केस में आप नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। या फिर आप 2% से ज्यादा का वोटिंग शेयर रखते हो कंपनी में NPO के डायरेक्टर होने के बावजूद, उस केस में भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि भाई मिस्टर एस जो है NGO चलाता है, या फिर उसका रिलेटिव कोई NGO चलाता है, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एक ही बात है। अब जो मिस्टर आर है वो डायरेक्टर है XYZ लिमिटेड का, तो मिस्टर आर डायरेक्टर है XYZ लिमिटेड का, उसने 35 लाख डोनेट कर दिए NGO को, टोटल NGO को 1 करोड़ रुपए डोनेट होता है, तो 1 करोड़ का 25% कितना होता है, 25 लाख रुपए। उस 25 लाख रुपए से ज्यादा की तुम्हारी इनकम मिस्टर एस को मिल रही है XYZ लिमिटेड से, तो इस केस में वो एलिजिबल नहीं होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। सो these are the different provisions of independent directors under the composition of the board of directors। तो ये हमने करा है सेक्शन 149(6), ठीक है। तो एक बार मैं आपको समरी देना चाहूंगी इसकी।
एक बार समरी देना चाहूंगी समझने के लिए। हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट ये मेरा खुद का नहीं है, आई डोंट वांट टू प्लेगराइज दिस। ये किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर इसने ना कुछ पीपीटी की फॉर्म में दे रखा था, सो आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट्स ऑफ दैट। इसकी जरूरत नहीं थी, बट एक बार देख लोगे तो मतलब हो सकता है तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाए इससे। दैट्स इट। सो हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता, होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता। इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसकी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आईईई होना चाहिए। दूसरा, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब वो खुद या उसका कोई रिलेटिव रिलेटेड नहीं होना चाहिए कंपनी से, मतलब प्रमोटर नहीं हो सकता। किसका प्रमोटर नहीं हो सकता? कंपनी का नहीं हो सकता, एसोसिएट कंपनी का नहीं हो सकता, सब्सिडरी का नहीं हो सकता, होल्डिंग कंपनी का नहीं हो सकता। सो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर should not be related to the promoters or the directors in all these companies. ठीक है। तीसरा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई उसका कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब मनी से रिलेटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, और 10% की एक लिमिट लगा रखी है। कब नहीं होना चाहिए? ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर। करंट और 2 पहले। किसमें नहीं होना चाहिए? कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए, कैश के साथ नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ प्रमोटर और डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए। रिलेटिव्स के लिए भी सेम रूल है कि भाई नन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ दैट पर्सन शुड बी होल्ड एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कैश, मतलब कोई सिक्योरिटी और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो भी हमने पढ़ा था, लेकिन उस सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के लिए 50 लाख की लिमिट लगा रखी थी। अगर 50 लाख के अंदर हो या 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल के अंदर हो तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उससे ऊपर हो तो उस केस में तुम फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते अगर तुम्हारा सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इस वाली लिमिट से ऊपर है तो। नेक्स्ट, none of whose relatives should be indebted to cash or their promoter or directors. इसमें भी एक लिमिट 50 लाख की दे रखी थी, मतलब लोन नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ना तुमने कोई गारंटी दी हुई होनी चाहिए किसी थर्ड पार्टी के लिए, वो या तो उसने या उसके रिलेटिव ने। सबके अंदर 50-50 लाख की लिमिट है। नेक्स्ट, none of whose relatives has any pecuniary transaction. अब लास्ट वाला पॉइंट क्या था? मतलब इसके अलावा और कोई रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए। उसको डिफाइन कैसे करा है कि 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर, या तो सिंगल या कंबाइंड। इसका मतलब समझो, जो भी हमने ऊपर पढ़ा ना, ये जो हमने पढ़ा कि फर्स्ट सिक्योरिटी और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ये हमने पढ़ा कि इंडेटेडनेस नहीं होनी चाहिए उसकी खुद की या उसके रिलेटिव की, ये हमने पढ़ा कोई गारंटी भी नहीं देना चाहिए। अगर ये 3 मिला के भी तुम्हारा 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर के ऊपर चला गया तब भी तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो। बट द पॉइंट इज कि तुम टेक्निकली तुम्हारा इस लिमिट से ज्यादा तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए कोई रिलेशनशिप कंपनी के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस लिमिट से ज्यादा तुम्हारा रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए उस कंपनी के साथ। नेक्स्ट, केएमपी या एम्प्लॉय नहीं हो सकता, या फर्म के साथ डील, जैसे लॉ फर्म था, ऑडिटिंग वाला था, वोटिंग पावर था, एनपीओ था। तो इन चारों पांचों केसेस में ये क्लियरली ये कहते हैं कि वो खुद या उसका कोई भी रिलेटिव कैश से रिलेटेड नहीं होना चाहिए इन तरीकों से, in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is appointed. अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ अ रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉय। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है जो एम्प्लॉय है, हमने क्या पढ़ा था, आपका कोई रिलेटिव है और वो अगर एम्प्लॉय है इन केएमपी है या ये, तो भी नहीं माना जाएगा। अच्छा, या तो वो खुद, ये बेसिकली समरी है तुम्हारी कि कोई भी तुम लीगल या कंसल्टिंग फर्म के थ्रू पैसा नहीं कमा रहे, या तुम ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं हो इन द 3 इयर्स, तुम खुद भी या तुम्हारे प्रोप्राइटर्स भी। लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? ये वाले पॉइंट्स पढ़े थे हमने। क्या पढ़ा था कि भाई रिलेटिव 2% से ज्यादा का वोटिंग पावर नहीं होल्ड कर सकता। अगर वो एनपीओ है, एनपीओ के अंदर वो कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो 25% से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता वो एनपीओ कंपनी से, या फिर 2% से ज्यादा का वोटिंग पावर नहीं हो सकता उस एनपीओ का उस कंपनी में, तब फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जो अभी हमने पढ़ा नहीं था बट क्या है ये, लास्ट पॉइंट ये है कि इसके अंदर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड हैव एप्रोप्रिएट स्किल्स
उसके बाद एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए। किस फील्ड में होना चाहिए? फाइनेंस में, लॉ में, मैनेजमेंट में, सेल्स में, मतलब ही शुड बी अ पर्सन ऑफ स्किल। तभी आईईई था ना कि भाई एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। सो एट द एंड व्हाट आई वांट टू से इज कि वो उसके पास आईईई होना चाहिए, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। प्रमोटर या प्रमोटर नहीं हो सकता वो, ना उसका रिलेटिव हो सकता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया था कि भाई 10% ज़्यादा पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। फिर रिलेटिव्स के बारे में हमने पढ़ा कि रिलेटिव्स के बारे में सिक्योरिटी और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए 50 लाख तक का, या 2% से पेड अप कैपिटल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इंडेटेडनेस नहीं होनी चाहिए, गारंटी या सिक्योरिटी नहीं देना चाहिए। तीनों में 50-50 लाख तक की लिमिट है। लास्ट पॉइंट था कि वो सिंगल, किसी भी सिंगल ट्रांजैक्शन से 2% से ज़्यादा का टर्नओवर उसका पेक्यूनरी रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए रिलेटिव का, या फिर टोटल इनकम उसकी 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टर्नओवर के। तो मतलब ये डिफरेंट केसेस हैं जो बताते हैं कि पेक्यूनरी रिलेशनशिप उसके रिलेटिव्स का नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई केएमपी या एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता वो, फर्म के अंदर कोई ऑडिट का काम करता है वो, या लीगल काम देता है और 25% तक का देता है तब तो कोई बात नहीं, अगर 25% से ऊपर देता है तो भी नहीं माना जाएगा। वोटिंग पावर उसकी 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एनपीओ में उसे 25% से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि उसके पास एप्रोप्रिएट एक्सपर्टीज होनी चाहिए फाइनेंस में या फिर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अफेयर्स में। सो दिस इज द होल टॉपिक। सो आई सी कि 1:30 तो बज चुके हैं, लेकिन आज मैंने क्लास भी थोड़ी लेट शुरू करी थी। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट आई हैव टू कवर, तो अभी मेरे साथ बने रहो। और अब मैंने 3 बार तुम्हें समरी दे दी है सेम टॉपिक की। सो आई थिंक कि अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा इसके बारे में। कंपनी सेम रहेगी या दूसरी भी चलेगी? देखो, कंपनी, खुद की कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी और उसकी एसोसिएट कंपनी, उन चारों के अलावा किसी कंपनी में उसका भाई डायरेक्टर है, उससे कोई मतलब नहीं। उन 4 जगहों पे, कैश जगहों पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, चांदनी पूछ रही है कि मैम अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का शेयर होल्डर है कंपनी में, तो क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा? शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं है, उसका वोटिंग पावर 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके रिलेटिव का या उस शेयर होल्डर का जो उसका रिलेटिव है। अच्छा, तन्वी पूछ रही है मैम एक कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए? बिल्कुल सही, ये वाला तो हमने डिस्कस ही नहीं करा भाई। कंपनी के अंदर 1/3, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं वो खोलती हूँ। वैसे तुम्हारा होता है 1/3 तक तुम्हारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, मतलब 33.3% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, सब्जेक्ट टू रूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। रूल 4 बोलता है कि भाई जिस जिस पब्लिक कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर है, आउटस्टैंडिंग लोन्स 50 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में उनके 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो, इफ यू आर एवरी लिस्टेड कंपनी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अगर तुम लिस्टेड हो, तो 33.33%, मतलब 1/3 तुम्हारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब टोटल डायरेक्टर्स के 1/3 तुम्हारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर तुम लिस्टेड कंपनी नहीं हो लेकिन तुम पब्लिक कंपनी हो, तो उस केस में रूल 4 को फॉलो करना पड़ता है, जो बोलता है कि अगर तुम्हारी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है, या तुम्हारा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, या तुम्हारा लोन 50 करोड़ से ऊपर है, उस केस में पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये जो हमने बात करी है दैट कि ये है सेक्शन 149(4), कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, अब चांदनी बोल रहा है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद पता चले तो ये गलत होगा, उसे पेनल्टी लगेगी और उसे हटा दिया जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। उसके भी प्रोविजंस बने हुए हैं कंपनीज एक्ट में, और वैसे ऐसा होता नहीं है, सब कुछ असेस करने के बाद ही उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जाता है। सामी, हाँ मैं इसका पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुकी हूँ दोनों ग्रुप्स में, टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप पे भी, बट ठीक है दोबारा भेज दूंगी। मैं ऑफलाइन क्लास नहीं लूंगी। सुष्मिता इज सेइंग क्लियर नहीं दिख रहा है। आई होप कि वो
उसमें क्लियर दिख रहा हूँ? देखो, जो मैं दूसरी या जब तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ तो मेरा अपने आप थोड़ा वो इंक्रीज हो जाएगा स्पीड। जब मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रही थी तो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रही थी। सो अगर तुम्हें उससे भी समझ में नहीं आ रहा, दैट मीन्स तुम्हें एक बार रीड करने की जरूरत है। अगर तुम उसे स्टोरी की तरह भी समझ लेते हो तो जैसे ही तुम रीड करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो चेतना बिल्कुल सही कह रही है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिल्कुल ही अलग ही बंदा होना चाहिए, सबसे अलग। उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ पुराना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि भाई भरोसेमंद होना चाहिए। थैंक यू सो मच सुष्मिता। चलो भाई, सुष्मिता को सब समझ में आ रहा है, मतलब किसी को कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर जिसको मेरी स्पीड तेज लग रही है मतलब उसका दिमाग स्लो है, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोगों को पूरा पूरा समझ में आ रहा है। कजन भी इंक्लूडेड है रिलेटिव्स की लिस्ट में, संस्कार। तो अगर किसी कजन का भी आपका कैश में रिलेशनशिप है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिटायर होते हैं? हाँ होते हैं, उनका एक टेन्योर होता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंप्लीट करके ही जाएंगे क्लास से, इसके लिए 10-15 मिनट और लगेंगे। हाँ जी चांदनी, मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक भेज दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ अगेन, अब नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस टॉपिक। अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, बट मैं एक बार आपको ये जो क्या नाम है उसका, रीना चड्डा वाली बुक से दिखाना चाहती हूँ उसका एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको टैक्स गुरु से इस वजह से पढ़ाया था क्योंकि उसके अंदर हर एक प्रोविजन के नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो वो भी मैं आपके साथ क्लास में शेयर करूंगी। जिसको समझ के करना है वो इससे कर सकता है। अदरवाइज जो लिखा हुआ है वो तो आपको रट्टे लगाना है तो आप लगा लो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं लेसन नंबर 10 पार्ट 1, जो हमें आज करना था, कंपनी मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने मीनिंग कर लिया, हमने डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम कॉम्पोजिशन पे थे। तो कॉम्पोजिशन में इंडिविजुअल होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पता होने चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए कम से कम एक। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो सेक्शन 149(4) क्या बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनी के अंदर 1/3 लोग हमेशा इंडिपेंडेंट होने चाहिए। 1/3 का मतलब है बेसिकली, अगर सपोज तुम्हारा पॉइंट्स में आ रहा है आंसर, लेट से तुम्हारे टोटल 10 डायरेक्टर, ठीक है, अब 10 इंटू 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 3.33। तो वो राउंड ऑफ करके 4, मतलब 4 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए उस केस में। सो इट इज राउंडेड टू 1, मतलब राउंड ऑफ हो जाएगा वो। कम से कम 1/3 तो होने ही होने चाहिए। तो लिस्टेड कंपनी में ये रूल है। अगर तुम पब्लिक कंपनी हो तो उस केस में अगर तुम्हारी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या तुम्हारे आउटस्टैंडिंग लोन्स जो तुमने ले रखे हैं वो तुम्हारे 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में कम से कम 2 डायरेक्टर्स तुम्हारे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, ये लिखा हुआ है इधर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बता दिया था, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो जो डे टू डे फंक्शनिंग में काम नहीं करता, जिसके पास एक्सपर्टीज होता है, इंडिपेंडेंटली वो डिसीजंस लेता है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ क्लियरली। एज पर सेक्शन 149(6) तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता, होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता। उसके पास आईईई होना चाहिए, इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रमोटर नहीं होना चाहिए वो खुद कैश में। कैश का मतलब है कंपनी में नहीं होना चाहिए, होल्डिंग में नहीं होना चाहिए, सब्सिडरी में नहीं होना चाहिए, एसोसिएट में नहीं होना चाहिए। सो ही शुड नॉट बी अ प्रमोटर इन कैश। ही शुड नॉट बी रिलेटेड टू द प्रमोटर्स, मतलब उसके रिलेटिव्स भी नहीं हो सकते कैश में। उसका कोई मॉनेटरी यानी कि पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। उस पेक्यूनरी रिलेशनशिप की लिमिट है 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, है ना। और ये किस में देख रहे हैं हम? इमीडिएटली 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में देख रहे हैं एंड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं। उसके कोई भी रिलेटिव्स की भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या तय कर रखा है कि 2% से ज्यादा का ग्रॉस टर्नओवर नहीं होना चाहिए, और 50 लाख की लिमिट भी लगा रखी है, विच एवर इज हायर। तो भाई एक तो 50 लाख की लिमिट है, दूसरी है 2% से ज्यादा का ग्रॉस टर्नओवर।
ये दोनों ही चीजें विच एवर इज हायर, वो तुम्हारी लिमिट है। किस में चेक कर रहे हैं? इमीडिएटली डू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में एंड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। वो या उसका रिलेटिव की मैनेजरियल पर्सनल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए इन कैश। ठीक है, अगर ही और हिमसेल्फ इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉय रह चुका है लेकिन वो 3 साल पहले था, तब कोई इशू नहीं है। दूसरा, वो कम से कम 3 साल तक वो कोई भी ऑडिटर्स के फॉर्म में या फिर लीगल या कंसल्टिंग फर्म की फॉर्म में कोई भी एडवाइस नहीं देता हुआ दिखना चाहिए, ना वो ना उसका रिलेटिव। और वो 10% से ज्यादा का पैसा नहीं कमा सकता कंपनी से। वही सब सेम चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं। सीईओ या फिर एनपीओ के अंदर उसका 25% से ज्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए, या फिर 2% से ज्यादा का टोटल वोटिंग शेयर नहीं होना चाहिए। फिर आ गया, ही शुड पोजेस सम अदर क्वालिफिकेशंस आल्सो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वो अदर क्वालिफिकेशंस क्या थी? उसे फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ही शुड बी अ पर्सन ऑफ सम माइंड। अच्छा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज टू बी नोटेड दैट द नॉमिनी डायरेक्टर इज नॉट कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। सबसे पहले हमने एग्जांपल ही नॉमिनी डायरेक्टर का पढ़ा था कि भाई बैंक ने लोन दिया तो उसने एक अपना बंदा नॉमिनी डायरेक्टर के नाम पे बिठा दिया, वो नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता कंपनी का। ठीक है, अब हम आ गए क्वालिफिकेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर। अभी मैं तुम्हारी 5 मिनट और पढ़ाऊंगी, उसके बाद छोड़ दूंगी तुम्हें। मुझे बस ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक कंप्लीट करना था आज। तो अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे आ जाओ कि भाई रूल 5 बोलता है कि उसके पास एप्रोप्रिएट स्किल्स, एक्सपीरियंस और नॉलेज होनी चाहिए इन मोर देन वन फील्ड्स, फाइनेंस की, लॉ की, मैनेजमेंट की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, सेल्स की। मोर ओवर, जहां पे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑडिट कमेटी का पार्ट है। कमिटीज होती है ना, हम आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट कमिटीज होती हैं, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज के भी पार्ट होते हैं। तो इसमें बोल रखा है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑडिट कमेटी का पार्ट है तो वो लिटरेट होना चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉर्मल लिटरेसी नहीं, फाइनेंशियली लिटरेट। उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। और सेबी के सर्कुलर बोलता है कि कम से कम 21 साल का तो होना ही चाहिए, 21 साल से कम के इंसान को तुम नहीं बना सकते। डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कौन नहीं बन सकता? तो क्या लिखा हुआ है? ऑल द डिस्क्वालिफिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स। जो भी नॉर्मल डायरेक्टर्स के लिए डिस्क्वालिफिकेशंस है, वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए भी डिस्क्वालिफिकेशन है, पहली बात। दूसरा, लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल, मतलब मैं, अगर मैं 7 से ज्यादा कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकती, तो केस स्टडी आ सकती है कि भाई XYZ लिमिटेड जो है वो 10 XYZ लिमिटेड जो है वो मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहती है, लेकिन मैं ऑलरेडी 10 कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। तो मैं अंडर दिस सेक्शन जो, या फिर अगर मुझे सेक्शन याद नहीं है एग्जाम में, तो मैं लिखूंगी अंडर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टॉपिक, एनी पर्सन कैन नॉट बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 कंपनीज। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लिस्टेड कंपनी। हर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है डिक्लेरेशन देता है। क्या डिक्लेरेशन देता है? वो लिख के साइन करके क्या बोलता है? वो बोर्ड ऑफ द मीटिंग्स में वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सो बेसिकली वो डिक्लेरेशन देता है कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, और मैं किस तरीके से, मैं हर जो क्या बोलते हैं फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। फर्स्ट बोर्ड ऑफ, हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग जो भी होती है उसमें आई विल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मतलब हर एक मीटिंग के अंदर उसे डिक्लेरेशन देना है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। कोड फॉर कंडक्ट, ये वैसे यूजलेस है, इट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट सेक्शन। कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या बोलते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि प्रोफेशनली एक्ट करना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना चाहिए, किसी एक बंदे के बेनिफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ढंग से फॉलो करना चाहिए, प्रोफेशनली फॉलो करना चाहिए। डेटा बैंक फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये जनरली बिलीव करा गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना बहुत इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। कहने का मतलब क्या कि अगर तुम क्या बोलते हैं, जब हम बोल रहे हैं कि उसके पास एक्सपर्टीज नॉलेज होना चाहिए, सो द पॉइंट इज कि यूजुअली कोई प्रोफेशनली बनता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है टेक्निकली, कि भाई कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप अगर नहीं है, और तुम अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, या फिर तुम क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेट थे, या फिर तुम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्रेंड हो किसी प्रमोटर के, तो उस केस में तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाओगे। डिफिकल्ट क्यों है?
बिकॉज जो कंपनी सीरियस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर और वो सच में इंडिपेंडेंटली काम करना चाहती है, तो वो कोई ऐसा बंदा लाएगी जो सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट से बात करे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई प्रमोटर का दोस्त भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है अगर उसका कोई भी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं है और वो सारे प्रोविजंस फॉलो कर रहा है। लेकिन डिफिकल्ट क्यों है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम? क्योंकि हिसाब से तो वो एक इम्पार्शियल बंदा होना चाहिए जिसका कंपनी से कोई रिलेशनशिप होना नहीं चाहिए, तभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस सही चलेगी। अगर अभी तो जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज हैं जहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पार्शियलिटी करने की वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ, कंपनी को लॉसेस अर्न करने पड़े और कुछ कंपनियां तो लिक्विडेशन में भी चली गई। ठीक है, तो इसलिए ये बातों को ध्यान में रखते हुए एक डेटा बैंक बनता है। सेक्शन 150 बोलता है कि किसी भी कंपनी को एक डेटा बैंक मेंटेन करके रखना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, और वहां से वो एक अच्छा डायरेक्टर डाल सकता है। ये जो है ये डेटा बैंक ऑथराइज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्रिएट करती है डेटा बैंक, और उसके अंदर से भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जब तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेलेक्ट करते हो तो बोर्ड को सारे स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज को सबको ध्यान में रखते हुए ढंग से सिलेक्ट करना चाहिए कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और एक एक्सप्लेनेटरी नोट जो है कंपनी को देना चाहिए कि क्यों इस बंदे को मैंने सिलेक्ट करा है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि व्हाई यू हैव चोजन दिस पर्टिकुलर पर्सन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जब तुम उसे अपॉइंटमेंट दे देते हो तो तुम्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है कि कितने दिनों तक वो रहेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द अपॉइंटेड डायरेक्टर, फिड्यूशरी ड्यूटीज क्या हैं, कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स। राइट, कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता जिसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ना हो। तो DIN नंबर होना उसके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। टेन्योर क्या होता है? यूजुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिटायर होते हैं, जिसने क्वेश्चन पूछा था क्या टेन्योर है उनका, 5 साल का। तो वो 5 साल के बाद दोबारा 5 साल के लिए बन सकता है अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो। तो मतलब अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनती हूँ तो मेरा टेन्योर 5 साल का होगा, उसके बाद मैं दोबारा एक और टर्म कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद में नहीं बन सकती। और अगर मैं अलग दूसरा टर्म लेती भी हूँ तो उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में। ठीक है, तो यानी कि 2 टर्म से ज्यादा कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद ही कैन बी रीअपॉइंटेड आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years। मतलब अगर मैंने पहले 5 साल का टर्म करा, फिर मैंने और 5 साल का टर्म करा, कंसेक्यूटिव 10 साल मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रही, उसके बाद मैं 3 साल तक नहीं बन सकती, 3 साल के बाद दोबारा बन सकती। Reappointment. An independent director can be reappointed on the basis of performance evaluation report. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो दूसरा टर्म से मिल रहा है तो उसके लिए उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, एक तरीके से अप्रेजल होगा उसका। रिटायरमेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन। कहने का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को टर्म के लिए अपॉइंट करा जाता है, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू रोटेशन। मतलब ये रोटेशन का मामला ही नहीं है, भैया तुम्हें 2 टर्म मिलेंगी, उसके बाद तुम 3 साल बाद दोबारा बन सकते हो। तो तुम या तो तुम्हारी डेथ हो गई तो तुम वेकेंट हो जाएगी, सीट वेकेंट हो जाएगी तो दोबारा नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा, बट रोटेशन का काम नहीं होता है यहाँ पे। रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, भाई इसके अंदर लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिल सकते, लेकिन उन्हें फी की फॉर्म में रेम्यूनरेशन मिल सकती है। अगर उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस करे मीटिंग्स के अंदर तो वो रीइंबर्समेंट मिल सकता है, और उन्हें कमीशन मिल सकता है एज अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स। लाइबिलिटी क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की? भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, प्रमोटर तो होता नहीं है, वो की मैनेजर पर्सनल तो होता नहीं है वो। सो उसका काम है कि ड्यू डिलिजेंस के साथ एक्ट करना। अगर वो ड्यू डिलिजेंस के साथ एक्ट नहीं कर सकता तो उसके ऊपर पेनल्टी या फिर कार्रवाई भी लग सकती है। स्मॉल डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर जिसने 20,000 से कम के शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं वो स्मॉल शेयर होल्डर होता है। ये हमने पढ़ा था प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में भी। तो ये सेक्शन अलाउ करता है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी टू हैव 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल डायरेक्टर्स। तो जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं उसमें से एक डायरेक्टर सिर्फ स्मॉल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे,
लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन माना गया है कि आपको स्मॉल शेयर होल्डर्स को भी मौका देना चाहिए कि वो अपॉइंट कर सके डायरेक्टर्स को। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल डायरेक्टर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये लास्ट ही पॉइंट है हमारा। दिस सेक्शन अलाउज अ लिस्टेड कंपनी टू हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। सो स्मॉल शेयर होल्डर एक डायरेक्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब रूल 7 क्या बोलता है? रूल 7 बोलता है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी में आइदर सुओ मोटो मतलब अपने आप, या फिर 100,000 शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर्स ने बोला है इस रिक्वेस्ट के लिए, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ने बोला, whichever is lower, have a small shareholders director elected। तो यानी कि सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए, मतलब बाकियों के लिए तो बोला हुआ है कि हाँ भाई तुम्हें स्मॉल डायरेक्टर से अपॉइंट करवाना चाहिए, बट लिस्टेड कंपनी के लिए एक रूल निकाल रखा है कि भाई अगर तुम ऑन इट्स ओन, या फिर जब 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स बोले, या फिर अगर 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, जो भी इन तीनों में से कम है, वो मिलके एक डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। वो डायरेक्टर क्या होता है, उस डायरेक्टर का क्या नाम हो सकता है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। मतलब वो डायरेक्टर उस स्मॉल शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके पास भी DIN नंबर ना होना चाहिए, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के पास भी। A small shareholder director shall be considered as an independent director। अब उसे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तब मानेंगे जब वो डिक्लेयर करता है कि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और उसके लिए भी उसे वही वाली सारी प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे जो हमने पढ़े थे पहले। सो दिस इज द केस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। सो टुडे आज का एजेंडा हमारा पूरा हुआ। हमने करा कंपनी मैनेजमेंट का मीनिंग, लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर्स, कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके अंदर हमारे पास थे टोटल हैं तो सिर्फ 6 पॉइंट्स ही, लेकिन उसके अंदर जो 5th पॉइंट था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, उसको हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ओके मैम, मैं ऐड कर दूँ। जस्ट सेक, मुझे ना इनको व्हाट्सएप लिंक शेयर करना है इनके साथ। ओके। So I'm sharing this WhatsApp link with you all. Thank you so much. Okay, thank you.